السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین حضرات، یہ جو اسکرین پر فوٹو دیکھ رہے ہیں یہ مفتی نعیم الدین دیوبندی کا ہے۔ اس کا نمبر بھی نیچے دیا ہوا ہے۔ یہ اتنا بڑا مفتی ہو کر ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتا ہے۔ کتنے بے شرم اور بے غیرت ہوتے ہیں دیوبندی لوگ۔ جب اس کو کال کر کے میں نے پوچھا کہ تم نے جو اعلیٰ حضرت پر بہتان لگایا کہ اعلیٰ حضرت نیا مسلک شروع کیے، تو کوئی ایک ایسا مسئلہ بتاؤ، کوئی ایسا عقیدہ بتاؤ جو اعلیٰ حضرت نے شروع کیا۔ تو یہ جواب نہیں دے سکا۔ میں نے کہا کہ ارے دیوبندی خبیث، تیرا جو مسلک ہے دیوبندی وہ نیا مسلک ہے، وہ اسلام سے بغاوت کرتے ہوئے تم دیوبندی خبیثوں نے نیا مسلک شروع کیا، اس لیے اسلام کے خلاف تم لوگوں نے عقیدہ گڑھا۔ تمہارا کفری عقیدہ ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، تمہارا کفری عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ نبی کے جیسا علم پاگل اور جانور کو ہے، تمہارا کفری عقیدہ ہے کہ نماز میں نبی کا خیال بیل اور گدھے کے خیال سے برا ہے، تمہارا کفری عقیدہ ہے کہ شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے۔ اس وجہ سے تمہارے مولوی نے خود کتاب میں لکھا ہے کہ اس دین کو قائم کرو، اس دین کو مضبوطی سے تھام لو جو دین گنگوہی اور نانوتبی نے قائم کیا۔ ارے نعیم الدین مفتی دیوبندی خبیث، تو دیکھ تیرے کتاب میں خود لکھا ہوا ہے اس دین کو مضبوطی سے تھام لو جو دین گنگوہی اور نانوتبی نے قائم کیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے تمہارا دیوبندی مسلک گنگوہی نے قائم کیا اور ہمارا اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا۔ تمہارے کفریہ عقیدہ کو جب اعلیٰ حضرت نے بے نقاب کرنے کا کام کیا تو حق پرست لوگ اعلیٰ حضرت سے جڑ گئے، اعلیٰ حضرت کی نسبت سے بریلوی کہا جانے لگا۔ تو کسی بزرگ سے نسبت کرنا نیا مسلک بنانا نہیں ہے۔ ہمارا کوئی عقیدہ نیا ہو تو بتاؤ۔ تیرے اندر ہمت نہیں، ورنہ تو ڈٹ کر مجھ سے بات کرتا اور اپنی حقانیت ثابت کرتا، کیونکہ تیرے پاس حقانیت ہے نہیں۔ تو میلاد سے اس لیے دشمنی کرتا، اس لیے جلتا ہے کیونکہ نبی کی شان بیان کرنا تم لوگوں کو برداشت نہیں۔ تم لوگ اپنے مولویوں کی شان بیان کر سکتے ہو، تم لوگ انگریز کی شان بیان کر سکتے ہو، لیکن نبی کی شان تم سے برداشت نہیں ہوتی۔ اس لیے سنی مسلمان میلاد مناتے ہیں تو تمہارا پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ اور تمہارا یہ کفری عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ خبیث لوگ نبی کے علم کا انکار کرتا ہے۔ جب اس سے میں نے علم غیب پر بات کرنے کی کوشش کی تو علم غیب پر یہ فرار اختیار کیا۔ پھر میں نے قرآن کے حوالہ دیا، میں نے کہا دیکھو سورہ کہف کی تفسیر میں، تفسیر بغوی میں حضرت خضر علیہ السلام کو علم غیب مانا گیا خضر علیہ السلام کے لیے، اور تفسیر بغوی کی عبارت ہے وَكَانَ رَجُلًا يَعْلَمُ عِلْمَ الْغَيْبِ۔ خود آپ دیکھ سکتے ہیں تفسیر بغوی۔ جب میں نے تفسیر بغوی کا حوالہ پیش کیا تو یہ کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام کو علم نہیں تھا۔ میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی بات چھوڑو، اب یہاں خضر علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ خضر علیہ السلام کو علم غیب ہے، تم مان رہے ہو، یہ تفسیر ہے، معتبر تمہارے لیے بھی ہے۔ تو آپ بتاؤ خضر علیہ السلام کو اگر علم غیب ہے اور تمہارا دعویٰ ہے علم غیب اللہ کی صفات خاصہ ہے، جب اللہ کی صفات خاصہ ہیں تو خضر علیہ السلام کو علم غیب ہے تو خضر علیہ السلام تمہارے نزدیک خدا ہوئے، یہ تمہارا شرکی عقیدہ ہو گیا۔ تو اس پہ لاجواب ہوا، کال کاٹ کے بھاگا یہ بھگوڑا مفتی۔ میں اس مفتی سے کہتا ہوں اور سارے دیوبندیوں سے کہتا ہوں، اگر تم ایک باپ کی اولاد ہو، تمہاری ماں نیک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تو اس مفتی سے میری بات کراؤ۔ دیوبندیوں کے کفری عقیدے پر میں اس سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر یہ مفتی مجھے کال نہیں کرتا اور کوئی دیوبندی اس مفتی سے میری بات نہیں کراتا تو میں سمجھ لوں گا دیوبند میں کوئی ایک باپ کی اولاد نہیں ہے۔ پورے دیوبند کی ذریت میں ایک باپ کی اولاد کہیں موجود نہیں ہے، سب کے سب حرامی ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اگر سچے ہو تو مجھ سے بات کرو۔ میرا نمبر اس مفتی کے پاس بھی ہے، اس مفتی کا نمبر میں اسکرین پر دیا ہوں۔ سبھی حضرات اس مفتی سے کال کر کے بات کریں اور اس سے دلیل مانگے۔ ایک سوال پوچھنے کے لیے کال کیا۔ جی بولیے حضرت یہ علم غیب ماننا نبی کے لیے کیسا ہے، یہ ذرا پوچھنا تھا آپ سے۔ نبی کو علم غیب ہے یا نہیں، اس کے بارے میں جو ہے یہاں بریلوی دیوبندیوں میں بہت زیادہ بحث چھڑی ہوئی ہے۔ ذرا میں جانکاری لینا چاہتا ہوں آپ سے کہ نبی کے علم غیب، جیسا بریلوی لوگ کہتے ہیں ما کانا وما یکونو کا علم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ایسا عقیدہ رکھنا کیسا ہے؟ اس پر کوئی دلیل تو ہونی چاہیے نا۔ جی قرآن تو کہتا ہے وما من غائبۃ قل لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ جی آپ کہہ دیجئے
لا یعلم، جی کوئی نہیں جانتا جو آسمان میں ہے اور زمین میں ہے، غیب کو جی صرف اللہ جانتا بس۔ جی اب یہ ہے کہ غیب کی خبریں اللہ نے پیغمبر علیہ السلام کو دی ہے، جی غیب کی خبریں اللہ نے جی جی پیغمبر علیہ السلام کو دی ہے، جی اور وہ غیب کی خبر اللہ نے اتنی دے دی ہے کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ علم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، جی لیکن غیب کا علم جو ہے وہ صرف اللہ کو ہے۔ اللہ نے اس غیب کو ظاہر کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی تو قرآن کریم میں جی حضور کے لیے اظہار غیب کا ذکر ملتا ہے، جی ٹھیک ہے، کہ غیب کو ظاہر کیا پیغمبر پر، جی غیب کی خبریں دی اللہ نے اپنے پیغمبر کو، جی لیکن غیب کا جاننے والا صرف اللہ ہے۔ تو علم یعنی غائب کا علم کا انکار ہے۔ ہاں یہ جو ایک تفسیر بغوی کر کے ایک کتاب تفسیر ہے، جی ہاں، ہاں، وہ واٹس ایپ پہ آپ کو بھیجا ہوں، دیکھیے ایک بریلوی نے مجھے بھیجا ہے۔ اس میں آپ کا وہ تعارف کیا ہے؟ خضر علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں، خضر علیہ السلام وہ شخص تھے جن کو علم غیب تھا۔ یہ تفسیر بغوی کے اندر ہے، وہ سورہ کہف کی تفسیر میں ہے۔ تو پھر علم غیب جب خضر علیہ السلام کے لیے مانا جا رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تو خضر علیہ السلام سے زیادہ ہے نا۔ ہم قیاس کو پہلے مانیں گے نا قرآن کو مانیں گے؟ قرآن میں تو ہے خضر علیہ اس السلام کو کو علم تھا، غیب اس ہے۔ کو تھا، اس کو تھا، اس لیے ہمارے نبی کو بھی ہونا چاہیے، یہ قیاس ہے۔ یعنی کہ علم غیب صرف اللہ کو ہے، تو خضر علیہ السلام کو بھی اگر ہے تو یہ بھی تو آپ کے عقیدے کا خلاف ہو گیا حضرت۔ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو علم غیب نہیں ہے، تو قرآن میں وہی تو خضر علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ تو جو یہ تفسیر میں بغوی تفسیر میں آپ کو آپ بھیجا پڑھ ہوں۔ رہے ہیں اس سے مراد وہی ہے کہ اللہ نے غیب کی خبریں پیارے نبی کو دی ہیں۔ علم لفظ علم ہے حضرت، یہاں آپ دیکھیے، وہ ایک بریلوی نے مجھے بھیجا ہے، آپ دیکھ کے ذرا اس کا جواب دیجئے۔ اور آپ نے جو کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف خبر ہے، اور جو کچھ دنیا میں ہوا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے سب کا علم حضور کو نہیں ہے۔ یہ دیکھیے بخاری شریف کا ایک حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان آپ جو تشریف فرما ہے۔ آپ بخاری شریف کی وہ میں آپ عبارت کو بھیج واٹس ایپ دیجیے، پہ بھیجا، آپ کو بھیج واٹس دیجیے۔ ایپ پہ۔ میں میرے موبائل میں بھی کمی کیا ہے کہ جب تک میں فون نہیں کٹ کروں گا واٹس ایپ دکھے گا نہیں میرے کو۔ اچھا تو میں حدیث پڑھتا ہوں، سنیے آپ حضرت۔ وہ بھیج دیں، آپ وہ ورق بھیج دیں، میں دیکھ کر کے آپ فون تو کروں نہیں گا آپ کو۔ توصیف مولانا توصیف رضا صاحب کا پوسٹ آپریشن کر رہے ہیں، تو اس میں تو آپ کا ہی آپریشن ہو رہا ہے حضرت۔ میرا کیا آپریشن ہوگا بھائی؟ آپ اس میں تو یہ میرا جھوٹ کیا بولے آپریشن ہوگا؟ حضرت، آپ نے اس میں یہ جھوٹ بولے ہیں ہاں کہ امام مولانا احمد رضا سے بریلویت شروع ہوئی، بالکل، دیوبندیت کب شروع ہوئی وہ نہیں بتایا آپ نے۔ دیوبندیت کوئی فرقہ ہی نہیں ہے، دیوبندیت ہی تو فرقہ ہے، اصل فرقہ تو دیوبندیت کوئی فرقہ نہیں ہے۔ جب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، عبدالحق محدث دہلوی، وہ لوگ میلاد مناتے ہیں، ان کی کتاب سے ثابت ہے، اور وہی بات اعلیٰ حضرت لے کے چل رہے تھے۔ دیوبندی میلاد کے علماء بارے میں بچھڑ تو گئے، بریلوی کہتا ہے کہ اللہ نے منایا ہے، تو پھر شاہ ولی اللہ کو بیچ میں کہاں سے لائے؟ تو اللہ نے منایا، اللہ نے اسی دن، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس دن حضور پیدا ہوئے، حضور کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے چاند و سورج کی روشنی میں اضافہ فرمایا۔ تو اس کو روشنی میلاد بڑھا بولتے کے ہیں۔ اگر کوئی مومن گلی سجاتا ہے، اپنے گھر کو روشنی سے سجاتا ہے، تو وہ تو اللہ نے سجایا ہے آسمان، اس لحاظ سے میلاد منایا اللہ نے۔ اس دن سجایا اللہ نے، جس دن حضور پیدا ہوئے، حضور کے صدقے میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کس دن خصائص سجایا الکبریٰ میں اللہ نے لکھتے ہیں۔ کائنات کو؟ ہاں، کائنات کو اللہ نے کس دن سجایا؟ اللہ نے میلاد کس دن منایا؟ اس کی تاریخ ہے آپ کے وہ پاس؟ چاند سورج کی روشنی میں اسی دن اضافہ تاریخ فرمایا، ہے حضور کیا جس کس دن پیدا ہوئے، منایا اللہ نے میلاد؟ حضور زمین پہ آئے، تاریخ بتائیے میرے کو، آپ تاریخ بتائیں۔ حضور جس دن پیدا ہوئے 12 ربیع الاول کے دن، 12 ربیع الاول ہی کو اللہ نے میلاد منایا۔ 12 ربیع الاول کو ہی اللہ نے سارے دنیا میں زمین کو پاک کر دیا۔ ایک کام اللہ کا ہوا، بھائی اللہ میں نے ایک ساری کام زمین اور کو دو پاک کام کی فرمایا بات حضور کے نہیں پوچھ قدموں رہا کے ہوں، میں صدقے میں۔ ایک کام اور دو کام کی بات نہیں کر رہا ہوں میں۔ کوئی بھی کام سے میلاد بنا، کوئی کسی حضور بھی فعل اللہ سے۔ نے میلاد منایا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میلاد امام کے جلال لفظ کے الدین ساتھ۔ سیوطی رحمۃ جلال اللہ الدین علیہ سیوطی کی الخصائص بات الکبریٰ تم میں بعد میں لکھتے ہیں۔ کرنا یار، تم جب اللہ کی بات کر رہے ہو تو قرآن کریم میں اس کا ذکر ہوگا نا۔ تو اللہ کی بات اللہ والے نے بتایا نا۔
भाई कुरान करीम में उसका जिक्र जरूर होगा ना। तो अल्लाह बुजुर्गों की वाला बात सबसे बड़े जो आप तो हमारे अपने नबी हैं। देवबंद की बुजुर्ग जो बोलते हैं आप आंख बंद करके मान लेते हैं। अब आप जब नबी की हमारे मिलाद की बात देवबंद आई, के सिर्फ अलग से अल्लाह की कोई बात। बुजुर्ग नहीं है, सारे सहाबा कराम और जो आपने नाम लिया ना शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, ये हाँ, तमाम अकाबिरीन को हम लोग मानते हैं। तो उनके मिलाद क्यों नहीं मानते? उन्होंने सवाल मिलाद यह है बनाया, कि आपने कहा कि अल्लाह ने मिलाद मनाया। अल्लाह मैंने ने सवाल क्या मिलाद कि बनाया, तो तारीख हमारे बताओ, बुजुर्गों ने अल्लाह ने बताया, किस दिन तभी तो हमारे मिलाद बुजुर्गों ने मनाया? मिलाद बनाया। अल्लाह ने किस दिन मिलाद मनाया है, उसकी तारीख बताएं आप। वो 12 रबीउल अव्वल के दिन अल्लाह ताला ने जमीन को उस जमीन को पाक फरमा दिया, मुसल्ला बना दिया सारे जमीन को हुजूर के सदके में। उसी साल अल्लाह ने जितने जितने औलाद दिए सबको नरीना औलाद दिया। उसी दिन चांद और सूरज की रोशनी में अल्लाह ने इजाफा फरमाया। तो ये जो अल्लाह का अफ़आल है, ये कौन सी हदीस में है, जरा हवाला देंगे? ये इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह आपको अलैह हदीस भेजना है, अल-खसाइसुल हदीस कुबरा भेजिए। में, अल खसाइसुल कुबरा पढ़िएगा, हाँ, समझ में आएगा। सारे मिलाद के बयान उसमें है। तिरमिजी आप भेज शरीफ दें, में भेज दें, भेज सहाबा दें। इकराम ने मिलाद मनाया। साहबा ने किस दिन मिलाद मनाया, कौन सी तारीख को? सहाबा ने, हम भी तो किसी भी दिन मिलाद मनाते हैं। तो वो तो हम भी मनाते हैं। आप कहाँ मनाते हैं? आप तो मिलाद तौसीफ रजा ने कहा, तौसीफ रजा ने कहा, सुनो जी, है तौसीफ रजा ने कहा कि मिलाद में हम यही करते हैं कि हुजूर की सीरत बयान करते हैं, हुजूर के हालात बयान करते हैं, ठीक है, हुजूर का किरदार बयान करते हैं। तो हुजूर की सीरत, हुजूर के हालात, हुजूर का किरदार तो हम लोग पूरे साल बयान करते हैं। आप देखिए सीरत तो आपके हिसाब से अगर वो मिलाद है तो हम लोग पूरे साल मिलाद करते हैं। मौलाना आप बोलते हैं, मुझे बोलने नहीं देते, यही बात नहीं, आप गलत बोलते हो तो कैसे मैं बोलने दे दूं आपको? देखिए आप भी गलत बोलते हैं, लेकिन फिर भी मैं बोलने देता हूँ। अब मेरी नजर में आप गलत बोलते हैं, आपकी नजर में आपने मैं अभी गलत बोलता सहाबा हूँ। का जिक्र किया, आपने सहाबा का जिक्र किया कि सहाबा ने मिलाद मनाया। मैंने आपसे तारीख पूछी, कौन सी तारीख को, आपने तारीख नहीं बताई। आपने कहा कि अल्लाह ने मिलाद मनाया। मैंने आपसे पूछा कि तारीख बताओ, आप तारीख नहीं बता रहे हैं। तारीख मैं बोल रहा हूँ, हमारे नजदीक साल भर हर दिन मिलाद मनाना जायज है, और जिस दिन हुजूर पैदा हुए उस दिन खुसूसी दिन है। उस दिन खुसूसी तौर पर हम खुशी का इजहार ज्यादा करते हैं। खुसूसी तौर पर अगर सहाबा ने, अब जैसे आपने कहा ना कि जिस दिन हुजूर पैदा हुए उस दिन हम खुसूसी तौर पर करते हैं, तो ऐसे सहाबा ने भी उस दिन खुसूसी तौर पर किया होगा। सहाबा के दरमियान हुजूर थे, हर दिन खुसूसी था सहाबा के लिए। सहाबा के सामने हुजूर थे। आपका सिर्फ एक दिन खुसूसी होता है? हमारे नजर के सामने आपका सिर्फ एक ही दिन खुसूसी होता है? सहाबा के नजर के सामने जब हुजूर मौजूद होते थे, जब हुजूर का चेहरा देखते थे, सहाबा इकराम अल्लाह की नेमत का जब हुजूर को देखते थे सहाबा इकराम, सुन लीजिए मौलाना साहब, सुन लीजिए, हजरत जरा सुन लीजिए, जब हुजूर को सहाबा देखते थे तब मिलाद मनाने लगते थे। उसी वक्त मिलाद, हाँ, वही सरकार की मिलाद के सदके में सहाबा ने फरमाया। तुम बोल क्या रहे हो यार, साबित क्या कर रहे हो कि सदके में? तो हुजूर के सदके में रहे हो कि हुजूर को जब सहाबा देखते थे तब मिलाद मनाते थे। हाँ, तो वो आप अगर किसी एक दिन मनाते हैं या साल भर मनाते हैं, हम पर उम्मत सिर्फ एक ही दिन क्यों मनाएगी जब सहाबा हर दिन मनाते थे? हम भी हर दिन मनाते हैं, तो कैसा मिलाद मनाते वो तो बताओ जरा आप। हर दिन मनाने का मतलब क्या है, तरीका क्या है? नबी वसल्लम जिस शान से तशरीफ लाए, नबी जिस शान से तशरीफ लाए उस शान का चर्चा करते हैं, क्योंकि आम इंसान की तरह नबी तशरीफ नहीं लाए। तो उस शान का तज़किरा तो हम लोग पूरी दुनिया के हर मुसलमान जो है नबी की शान का तज़किरा पूरे साल करते हैं। आप नहीं करते, क्योंकि आपको 40 साल के बाद नबी बने, ये आपकी किताब में लिखा हुआ है। 40 साल पहले नबी मोमिन भी नहीं थे, माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। बात यहाँ नबी की नहीं है, नबी होने की बात नहीं। आप बात बदलते रहिएगा तो मौजू भी खत्म रहेगा। तो आप एक मौजू पर बात नहीं कर रहे हो, आप एक मौजू पर बात नहीं कर रहे हो। तो आप लोग की बीमारी यही है कि आप एक मौजू पर बात नहीं करते। जो गैर जरूरी है उसमें खींचतान कर रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोग जो है ना, बीमारी आपकी यही है, आपकी बीमारी यही है, आपकी बीमारी यही है कि आप लोग एक मौजू पर बात नहीं करते हो। अभी आप एक मौजू पे बात कीजिए ना, आप तो खींचतान करके। आपने कहा कि सहाबा ने भी मिलाद मनाया, हाँ, मैंने तारीख पूछी, आपने तारीख नहीं बताया। आपने कहा हर दिन मनाते थे, आपने कहा हर दिन मनाते थे सहाबा। जब सहाबा हर दिन मनाते थे तो फिर खुसूसियत नहीं रही ना एक दिन की। हाँ, क्योंकि सहाबा के जिस दिन पैदा हुए दिन को याद रखना है ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन पैदा हुए उस दिन खुसूसी तौर पर अल्लाह की रहमत हुई। तो यही मैं पूछ रहा हूँ, सुन लीजिए हजरत, सुन लीजिए मेरी बात तो सुनिए। आप ही बोलते रहिएगा तो मैं कब बोलूंगा? आप ही तो बोलते रह रहे हैं, हम कब बोल रहे हैं? आपने कहा कि जिस दिन पैदा हुए हुजूर उस दिन को याद रखना है।
हाँ, अच्छी बात है। अच्छी बात है तो ना। सहाबा बुरी इकराम बात ने मत भी तो उस कीजिएगा। दिन को खुसूसी से याद रखने के लिए मिलाद मनाया होगा ना भाई। आप मैं ये सहाबा पूछ रहा हूँ इकराम आपसे हुजूर के मिलाद का चर्चा भाई, किए आप बात हजरत। मेरी नहीं समझिएगा तो आप जवाब भी उल्टा सीधा दीजिएगा। आप अपने जिद पे रहिएगा तो मसला हल नहीं होगा। हाँ, आपने अभी क्या कहा कि हुजूर की का मिलाद सहाबा हर दिन मनाते थे, नंबर हाँ, एक। अभी आपने कहा कि जिस दिन हुजूर पैदा हुए उस दिन खुसूसी दिन को याद रखने के लिए खुसूसियत से मिलाद मनाया है। हाँ, तो ये दो बात आपने कही। हाँ, दोनों बात हम तो ये साबित किए। खुसूसियत से जो सहाबा ने उस तारीख को मिलाद मनाया है उसका तो प्रूफ आप दें जरा। एक तो अल्लाह की बात आपने मान लिया कि अल्लाह ताला ने मिलाद मनाया, फिर सहाबा ने भी अल्लाह ने मिलाद मनाया, दोनों उस पर बात तो मैं आपने माना। दलील मांग रहा हूँ। मान कब लिया भाई? आपने अभी तक दलील ही नहीं दिया है। हाँ, तो मैंने आप ये कहते हैं बात हुजूर के साबित किया। सदके में पैदा किया, वही मिलाद है, इसको मिलाद बोलते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चर्चा करने को हम मिलाद बोलते हैं। नबी के चर्चा शान तो का हम पूरे चर्चा साल को हुजूर मिलाद का बोलते करते हैं। हैं भाई, पूरी दुनिया हुजूर का चर्चा करती है। वो कौन आप मुसलमान है जो हुजूर आप का मिलाद के चर्चा न हिसाब से करे? चर्चा इसलिए नहीं करते क्योंकि आपके नजदीक नबी मोमिन बन के पैदा नहीं हुए। फिर आप नबूवत पर आ वही गए। बात आप इसलिए आप विलादत की चर्चा बात नहीं कीजिए। करते। आप नबूवत झूठ अलग बोल चीज है, रहे हैं, विलादत अलग चीज है। झूठ बोलते हैं आप आप झूठ बोल रहे बोलते हैं, हैं। देखिए आप मिलाद मौजू को, आप हमारे देखो हिसाब से आप आपके मिलाद पास नहीं जवाब मनाते। नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है, आप आपके भटक रहे पास हो। जवाब नहीं है। आपके आप पास भटक इल्म रहे हो गैब इधर पर भी उधर। आप आपका ये एक कुफर मौजू है। को तायीन करके बात आपका नहीं कर रहे। तौसीफ रजा का रद्द करने के बजाय आप खुद अपना ही रद्द किए हैं। तौसीफ रजा मौलवी की तो साहब, बखिया उधेड़ दिया हूँ, और बखिया तौसीफ उधर रजा के आपका हो मानने रहा वाले है। जो मौलवी है साहब, उस मौजू पर मुंह खोलने मौलवी की ताकत साहब, नहीं रख रहे हैं। आपको अगर हिम्मत है आप अपने अकायद मुसलमान अकीदा साबित करें उलमा देवबंद का। अगर आपके अंदर हिम्मत जिसका है। अकीदा साबित है, हमको साबित करने की जरूरत क्या है भाई? साबित नहीं है। अरब आजम के उलमा ने काफिर होने का तुम्हारी फतवा और दिया तुम्हारे देवबंदी अहमद को। रजा खान काले हजरत की औकात क्या है कि वो हमारे देखिए, इस्लाम को जो है आप मेयार को समझे? अपने उलमा के खिलाफ जा रहे हैं। अनवर शाह कश्मीरी ने कहा आला हजरत की गुस्ताखी जायज नहीं है। हाँ, महमूद हसन देवबंदी ने कहा आप अपने उलमा के हिसाब से गुस्ताख साबित हुए। आप कैसे आपके गुस्ताख अनवर शाह साबित हो कश्मीरी गया? को तो माने। आपने आला आपके जो हजरत की दुश्मनी आपके जो में आला हाँ, हजरत की दुश्मनी में आप अपने उलमा को जूता मार रहे हैं। आप गंगोही को, अशरफ अली थानवी को तो जूता मत मारे जनाब। आप एहसान मानिए हमारे उलमा का। सुनो आपके सुनो, उलमा का कोई हमारे एहसान नहीं। उलमा का आपके उलमा एहसान मानिए। सुनिए, आपके उलमा अरे सुन लो भाई, जालिम है। अल्लाह और रसूल के खिलाफ आपके आप उलमा ने सुन, कहा अल्लाह झूठ हमारे बोल उलमा सकता का है। एहसान मानिए कि अल्लाह आपके झूठ बोल उलमा की सकता है। कदर किया हमारे उलमा ने। जिस किताब आप में खाली ऐसे ही बात करते रहोगे जाहिलों की तरह, तो फिर मैं जाहिलों की तरह आप वइज़ा एक मौजू पे खातबहुमुल टिको ना। जाहिलून क़ालू सलामा करके फोन इल्म गैब रखूंगा। पर आप हारे। आप मौजू पर बात करोगे तो मैं बात करूंगा, चाहे पूरी रात बात करो। हाँ, मैं एक मौजू पे बात करूंगा। इल्म गैब कहाँ एक पर, मौजू पर? अल्लाह के मिलाद पर गए, इल्म सहाबा के गैब पर, मिलाद पर तौसीफ गए, रजा फिर के बीच नबूवत में, पर चले गए। तौसीफ दलील रजा एक भी नहीं साहब आई के, आपकी तरफ से अभी तक। मैं इल्म गैब पर बात करूंगा, पूरी रात बात करूंगा। चलो इल्म गैब पर बात करते हैं। आपके अंदर जुर्रत है, हिम्मत है, इल्म गैब पर बात कीजिए। हमने जो दलील मांगी है आपसे, मैं इल्म दलील भेजा गैब हूँ पर, आपको। इल्म गैब आपको पर जो कमी दलील आपकी कुरान और कमजोरी हदीस से है। मांगी आपने मैं दिया ही पढ़ नहीं के अभी सुना तक। रहा हूँ बुखारी शरीफ। मैं खोला हूँ बुखारी शरीफ। बुखारी शरीफ खोला हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए बुखारी शरीफ की हदीस है। आप भेजिए, वो पेज भेजिए, पेज भेजिए। मैं भेज रहा हूँ बुखारी शरीफ की हदीस। हजरत हदीस भेज दीजिए, हदीस भेज दीजिए। एक मिनट रुकिए, 1 मिनट के अंदर मैं भेज रहा हूँ पहले हदीस। उसके बाद आपसे मैं इस हदीस पर बात करूंगा। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान तशरीफ लाए और इब्तिदाए खल्क से लेकर क़यामत तक हर चीज बता दिया। और इसके शरह में इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया कि अल्लाह के नबी कम वक्त में सारी बातें बता देना, ये अल्लाह के नबी का मौजज़ा है। यानी इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाहि अलैहि भी मान रहे हैं। हजरत, छोटे हजरत, इससे कौन इनकार करता है भाई? अल्लाह ने बताया। मैंने अभी आपसे कहा इल्म गैब को अल्लाह ने अपने पैगंबर पर जाहिर फरमाया। जब जाहिर फरमाया तो हुजूर ने बताया। तो हर चीज का इल्म हुजूर को है, यही तो मैं बोल रहा हूँ। हुजूर को नहीं है, हर चीज का इल्म तो सिर्फ हुजूर ने अल्लाह बताया को तो है। हुजूर के पास कुल इल्म नहीं है। ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह। अच्छा, तो ये इल्म अल्लाह ताला ने नबी को दिया या नहीं दिया? नबी को अल्लाह ने उसकी इत्तला दी है, तो इल्म नहीं दिया, बजरिए वही। इल्म नहीं दिया। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, उल्लिमतु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। तिरमिज़ी शरीफ, वो भी भेज रहा वहां पर हूं। गैब नहीं है, इल्म है, यहाँ इल्म है, वहां पर गैब नहीं है। इल्म का आपको भी आपके उस्ताद ने इल्म दिया तो आपको इल्म गैब हो गया। जो जमीन और आसमान में जो कुछ है, अल्फाज पे रहो आप। आपको आपके उस्ताद ने इल्म दिया, आप इल्म गैब के मालिक हो गए क्या? उस्ताद ने वहां मुझे उल्लिम दिया। तो है, आप जो इबारत पढ़ रहे हो ना,
उल्लिमतुल गैब दिखा दो मेरे को, है, आप इल्म का लफ्ज़ उल्लिमतुल है, गैब दिखा दो, आसमान के हर चीज का उल्लिमतुल इल्म। गैब दिखा दो आप, हाँ? उल्लिमतुल गैब दिखा दो कि मुझे गैब का इल्म दिया गया। तो जो सामने है उसको गायब नहीं कहते, जो दूर से दूर है तो भाई उसको वो जो गायब। दूर और नजदीक की बात मत करो। जब हाँ, तो आप इबारत जमीन पेश और कर रहे हो आसमान में जो दलील के कुछ तौर है। पर, सुनो भाई हजरत, जब आप दलील के तौर पर कोई इबारत पेश कर रहे हो तो उस इबारत में वो लफ्ज होना चाहिए जिस मौजू पर आप बात कर रहे हैं। हाँ, तो उस लफ्ज है, वो आप लफ्ज है उल्लिमतु पढ़ रहे हैं लेकिन उल्लिमतुल गैब वहां पर है क्या? माफिस समावाती व माफिल अर्दी, मतलब क्या है? भाई माफी समावाती वल अर्ज की बात नहीं वो कर रहा गायब हूं, है आप नहीं। गैब के इल्म की बात कर माफिस रहे हैं। समावाती व माफिल अर्दी गायब आप नहीं है। गैब के, आपके उस्ताज, आपके मुफ्ती, आपके मौलाना अहमद रजा खान ने आपसे ज्यादा इल्म पढ़ा है, हाँ, तो क्या वो इल्म गैब हो गया उनके पास? वो इल्म ज्यादा इल्म को गायब नहीं कह रहा है। सारा इल्म जो है सारा गायब हो तो गया। आदमी के सामने नहीं होते ना। वो गैब हो गया। गायब है, बेशक गायब है। अच्छा, खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में तफसीर बगवी में खिज़र खिजर पे अलैहिस्सलाम मत जा, अपने नबी बात हमारे करो। नबी का जो शागिर्द है, हमारे नबी आप का यहाँ से मुक्तदी बात है, खिजर पे, खिजर से इदरीस पे, इदरीस से इस्माइल पे, वहां मत जाओ। खिज़र पैगंबर अलैहिस्सलाम के लिए अलैहिस्सलाम के देखो, बारे में आपने जो इबारत अभी उसूल पढ़ी है, है, अदना आप के लिए उस साबित इबारत होता में है। गैब का लफ्ज मौलवी दिखाओ साहब, मौलाना साहब। मौलवी साहब, जो अदना के लिए साबित होता है वो आला के लिए ऑटोमेटिक साबित हो जाता है। ये क्या बोले? जो कायदा अदना कुल्लिया के है, लिए, कायदा कुल्लिया है। जो अदना के लिए साबित हो वो आला के लिए बदा जाए औला साबित होता है। अच्छा, अदना को मालूम रहता है, वो आला तो को वो मालूम रहता है। सबसे आला, जो सबसे आला वो अदना के आला लिए हमारे साबित होता नबी, है वो आला के लिए साबित होता है। हमारे अब नबी यहाँ का पर फेल हो इल्म गए आप। कायनात का कुल है, हमारे नबी का इल्म मैंने आपसे कायनात का सवाल कुल किया, है ना। आपने उसूल पेश किया अभी हाँ, कि जो अदना के लिए साबित होता है वो आला के लिए साबित होता है। हाँ, तो खिजर अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम में आपने कहा कि आला मूसा अलैहिस्सलाम है। दोनों से आला तो हमारे हुजूर है। अब भाई खिज़र अभी अलैहिस्सलाम से हुजूर की मूसा बात नहीं अलैहिस्सलाम कर तक रहा नहीं हूं जा रहे मैं हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे नहीं, में आप आपसे मूसा सवाल अलैहिस्सलाम किया। के पास नहीं जा सकते। आपने अभी हम खिजर, आप बात खिजर कर पर रहे क्यों गए हैं भाई? खिज़र अलैहिस्सलाम के लिए इल्म गायब। जब आप खिजर पे अल्लाह की क्यों गए? सिफात जब है, खिजर पे आप गए तो आप वहां खिज़र मूसा पे क्यों अलैहिस्सलाम भी है। मुशरिक हुए ना, आप मुशरिक हुए खिज़र को इल्म गायब मानकर। जब आप कह रहे हैं मैं जो सवाल करता हूँ सवाल का जवाब ही आपके पास नहीं, खाली बकते रहिएगा जितना आपने रटा है। और जो आप वहां पर देख रहे हो अपने मौलवी साहब की किताब में वही बक रहे हो पढ़ पढ़ के, नहीं, तो पढ़ ऐसे के मैं बहस नहीं नहीं बता होगी। रहा हूँ। आपको अगर बहस करने का सलीका है तो उसूल पे बात कीजिए, आप उसूल पे बात कीजिए और अपना तारुफ कीजिए, नाम पेश कीजिए और उसके बाद जो है आपसे बात हो जाएगी। पहले शिरक से तौबा करें। खिज़र अलैहिस्सलाम का इल्म गायब तुमको सिर्फ जिद करना आता है, बहस करना नहीं आता। तुम लोगों के पास इल्म भी नहीं है। आप तफसीर बगवी में है, फिर वापस होके तुम तफसीर बगवी में चले गए। खिज़र अलैहिस्सलाम के अभी खिज़र अलैहिस्सलाम के पास गए, खिज़र अलैहिस्सलाम के पास मूसा अलैहिस्सलाम है और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो इल्म खिज़र अलैहिस्सलाम के पास था वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास क्यों नहीं है? और अव्वलीन व आखिरीन का इल्म खिज़र अलैहिस्सलाम का इल्म हुजूर को है। आपकी किताब में, आपकी मैंने भाई सवाल किया, आप उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो। आप पहले सवाल का जवाब भाई दें। आप मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? मौलाना, एक सवाल मैं पूछूंगा उसके बाद आपको बोलूंगा। मैंने सवाल किया, आप उस सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? आप दें। आपके तहज़ीरुन नास में लिखा हुआ है। क्या मैं फिर तहज़ीरुन नास पे गए? एक मौजू पर बात वही करो, सवाल मैं जवाब एक मौजू पर बात करो। मैं वही टॉपिक पे, उसी टॉपिक क्या टॉपिक पे? उसी पे बात करो। जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब ही नहीं दे रहे। जवाब दे रहा हूँ। आपने अभी अपने मुंह से क्या कहा? जो इल्म अदना के लिए साबित होता है वो आला के लिए। आपकी बताई हुई बात को मैं दोहरा रहा हूँ। 1 मिनट मुझे बोलने दे, फिर आपको बोलने दूंगा। आपकी बात को दोहरा रहा हूँ, पहले इसका जवाब दे दो आप। हाँ, आपने कहा कि जो इल्म अदना के लिए साबित होता है वो इल्म आला के लिए साबित होता है।